Hello and a very warm welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. You are watching the weekly wrap. Cryptocurrency markets were trading lower in the beginning of the week ahead of the key inflation data on Tuesday, followed by US Fed rate setting meet outcome. Fed Chairman Jerome Powell is widely regarded to hike interest rates. Bitcoin traded below $17,000 levels, while Ethereum plunged below $1,300 mark. In recent news, bankrupt crypto exchange FTX's founder Sam Bankman-Fried has announced that he will testify before the House Financial Services Committee on December 13. Nevertheless, Sam Bankman-Fried, founder and former CEO of the bankrupt crypto exchange FTX, has been arrested by the Bahamas police at the request of the US government, as he was willing to testify as a witness before the US House of Representatives Committee on Financial Services, as the committee started investigating the events that led up to FTX's implosion. The United States Bureau of Labor Stats published the numbers for the Consumer Price Index, bettered expectations that boosted investors' sentiments. US CPI for November came at 7.1%, lower than expectation, which spurred major cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum, to trade with gains of more than 4%. Meanwhile, the US Federal Reserve raised its benchmark interest rate by 0.5 percentage points to its highest level in 15 years, indicating that there would be further hikes next year, analysts said, after inflicting a 75 basis point increase during the past 4 successive FOMC meetings. तो संदीप, देखा जाए तो पिछले इस हफ्ते की शुरुआत में अगर हम देखें तो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो थोड़ा लोअर ट्रेड कर रही थी. उसके बाद फिर यूएस सीपीआई नंबर्स पर सभी की नज़रें थी, जो कि विच केम एट 7.1% लोअर दैन एक्सपेक्टेड. तो उसके बाद थोड़ा सा बिटकॉइन और इथेरियम में 4% लगभग कुछ तेज़ी देखी गई मार्केट में. इसमें G20 का जो ग्रुप मीटिंग जो हुआ था उसमें इकोनॉमिक लीडर्स ने बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई 13 से 15 के बीच में, उसमें क्रिप्टो एसेट पॉलिसी को लेकर एग्रीमेंट की पेशकश भी की थी उसमें. जी बिल्कुल. तो बढ़ते अगली खबर की ओर. भारत ने समय समय पर अपनी सीमाओं के भीतर क्रिप्टो उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की मांग की है, जिसने अब ग्रुप 20 की प्रेसिडेंसी भी संभाली है. भारत अगले वर्ष ग्रुप के एजेंडे को आकार देने जा रहा है, क्योंकि अब भारत देश इस ग्रुप का अधिग्रहण कर रहा है, जिसमें 19 राष्ट्र और यूरोपियन संघ एक ब्लॉक के रूप में शामिल है. तो विशाखा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भारत सरकार के. इस भारत सरकार ने अब जो क्रिप्टो को लेकर उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तो इसको लेकर अभी ग्लोबल कोऑपरेशन की मांग की गई थी. तो भारत सरकार ने ये भी कहा कि क्रिप्टो को लेकर कोई एक देश उसका डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, ऐसे भी उन्होंने कहा था. जी. और इसके साथ साथ संदीप, अगर हम देखें तो FTX कोलैप्स जो हुआ उसके बाद पहले हमने टेरा लूना कोलैप्स देखा, फिर FTX कोलैप्स. तो इस सब के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है एक सेट ऑफ रूल्स आ जाएं, और जैसा कि आपने बताया, एक सभी जो देश हैं वो मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करें. जी. Moving on to the next update, the use of central bank digital currency or CBDC, also known as e-rupee, has been lower than expected in the first 2 weeks because there are still questions about whether digital currency transactions are anonymous. Some of the concerns are being addressed by the RBI. Transactions between wallets are said to leave no digital trail. According to a source familiar with the situation, the RBI will issue a statement on the matter soon, because anonymity is one of the key features of the recently piloted retail CBDC. तो जब से ई करेंसी आया है उसके बाद देखा गया तो पिछले 2 हफ्तों से बहुत कम इसका यूज़ हुआ है, और इसकी जो की फीचर एनोनिमिटी बोली जा रही थी उसके बाद भी ऐसा देखने को मिला है. अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होती है तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है. ये जो सीबीडीसी का और आरबीआई का जो है पहल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. इसके लिए क्या हो कि ये कुछ अवेयरनेस की कमी यहाँ पर कहीं पर हमें दिखाई दी है. तो अगर ये अवेयरनेस पूरी अच्छी तरह से होती है
तो सब यूजर्स इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। और आरबीआई अभी आने वाले दिनों में सोर्सेस के अनुसार आरबीआई आने वाले दिनों में कुछ स्टेटमेंट भी जारी करने जा रही है इसी को लेकर। जी तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इस सप्ताह की शुरुआत में जब कार्डानो के सह संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन को ट्विटर पर पूछा गया कि क्या वो भारत में लैब्स में निवेश करने और यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग करने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कार्डानो में भारतीय बाजार में प्रवेश करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि दक्षिण एशियाई देश अधिक प्रगतिशील नियमों के पक्ष में अपनी एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज को त्याग नहीं देते। तो ये ट्विटर पर उनको पूछा गया था, हॉस्किंसन जी को पूछा गया था कि भारत में ये सब आप इसमें निवेश करेंगे क्या, तो उन्होंने इस बात पर कहा कि हम इसमें नहीं कर सकते इन्वेस्ट, क्योंकि भारत पहले से ही एंटी क्रिप्टो रहा है उनके अनुसार उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग सरकारी प्रयासों से भारत सरकार जो है वो क्रिप्टो पर आउटबैन लगा रही थी और भारत को लग रहा था कि ये क्रिप्टो जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के समान है, इसके लिए वो थोड़े पीछे हटे। बिल्कुल। और चार्ल्स हॉस्किंसन ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो भी मार्केट में निवेश करना चाहेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे पहले से ही नॉलेज हो इस मार्केट के बारे में, तभी वो इस मार्केट में उतरेंगे। और अभी ये भी उन्होंने कहा है कि ये सही वक्त नहीं है। बिल्कुल जी। Moving on to the next update, Sam Bankman-Fried, the former CEO of FTX crypto exchange, was detained in the Bahamas just one day before he was scheduled to testify virtually before the US House Financial Services Committee for its first hearing on the collapse of the company. The surprise arrest followed receipt of formal notification from the US that it filed criminal charges against Bankman-Fried and is likely to request his extradition. Additionally, FTX founder and former CEO Sam Bankman-Fried will be remanded into custody after a Bahamas judge ruled he should be denied bail on Tuesday. Magistrate Judge Joan Ferguson Pratt ordered that there be an extradition hearing next year on Feb 8, 2023 at 10 a.m. ET. तो अगले साल 8 फरवरी को ये जो मीटिंग है वो होने वाली है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सैम बैnkman-फ्रीड जब उनकी जो ये हियरिंग होने वाली थी इस हफ्ते, उसके पहले ही बहामास में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ FTX की मुश्किलें अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाली हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का जो राउंड है वो शुरू होने वाला है। और यूनाइटेड स्टेट्स और बहामास दोनों ही जो भी FTX के साथ जितने भी लोग जुड़े थे, क्योंकि जो जिन्होंने डिपॉजिटर्स थे या जिन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया था, उनके क्लाइंट फंड को गलत तरीके से बोला गया कि जैसे लाविशली सैम बैnkman-फ्रीड ने ये उड़ाया है इसे, तो उसी को लेकर ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है अब पूरा होने वाला है और सभी को इस पे जवाब देना होगा। बिल्कुल। यूएस ने जो है वो SBF पर पहले ही क्रिमिनल चार्जेस तो लगाए हुए है ही, तो बहामास अभी क्या कर रहा है कि अभी इसको और डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन वो जारी रखेगा। जी हाँ, तो बढ़ते अगली खबर की ओर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC ने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX सैम बैnkman-फ्रीड के संस्थापक और पूर्व CEO पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है। SEC ने आरोप लगाया कि बैnkman-फ्रीड ने अपने एक्सचेंज के कस्टमर असेट के प्रोटेक्शन के लिए सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिस्क मेजर पेश करते हुए 1 साल की लंबी धोखाधड़ी की साजिश रची। तो आपने देखा एक कितना बड़ा कंसर्न है, मतलब 1 साल से वो उसकी साजिश रची जा रही थी इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए। और इसमें मैं आपको ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैम बैnkman-फ्रीड जो है वो लोग खुलासा करने में विफल रहे, क्योंकि उसमें कैसे अपने फर्म के एसोसिएट ट्रेडिंग फर्म जो एल्मेडा रिसर्च के साथ उन्होंने फंड को मिक्स किया। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। ऐसे ये सब कंसर्न्स हमें देखने मिला। जी। और जैसे मैंने पहले भी हमने बात की अभी कि बहुत लाविशली जो क्लाइंट फंड्स थे उसे उड़ाया गया है। जी। Moving on to the next update, one of Sam Bankman-Fried's top lieutenants told Bahamian authorities that customer funds from the firm were used to plug holes in the balance sheet of his investment fund, Alameda Research. In a November 9 call with Bahamian regulators, FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salem told Bahamas Securities Commission Executive Director Christina R. Rowley that client assets possibly held by FTX were transferred to Alameda Research to cover the hedge fund's financial losses. The transfer of customer assets was
contrary to normal corporate governance and operations at FTX Digital, Rowley wrote in a November 11 court document filed to the Supreme Court of the Bahamas seeking an emergency intervention for the regulator to seize control of the company's remaining assets. Put simply, that such transfers were not allowed or consented to by their clients. Salem's comments to the regulator also prompted her to alert the Bahamian police, requesting an investigation into the company on an urgent basis. The request to police notes that Salem was in Washington, D.C. on November 9. तो FTX के जो डिजिटल मार्केट्स को CEO रहे हैं रियान, उन्होंने ऑफिशियल्स के सामने ये कहा है कि एलामीडा रिसर्च में जो इन फंड्स ट्रांसफ़र किए गए, वो जो हेज फंड्स थे उसके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए किया गया था। और काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट्स भी उनके द्वारा ऑफिशियल्स के सामने दी जा रही हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो ये प्रोसीजर है वो जारी है। इसमें एक पासवर्ड को लेकर भी एक कंसर्न था। पासवर्ड को शेयर किया गया था जिनमें सैम बैnkman-फ्रिड खुद थे, उसके बाद निशात सिंह भी थे और गैरी वैंग भी थे। बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। FTX का ब्रांड इतना टॉक्सिक है कि इससे पहले कि वे एसोसिएशन से वैल्यू को खो दे, सब्सिडियरीज कंपनियों को बंद करना चाहता है। कंपनी के नए लीडरशिप ने अगले साल की शुरुआत में फेल्ड क्रिप्टो एम्पायर के कारोबार के कुछ हिस्सों को बेचने की अनुमति के लिए एक फेडरल बैंक्रप्सी जज से पूछा, जबकि FTX की सब्सिडियरीज कंपनियां अभी भी वैल्यूएबल है। तो विशाखा, अगर बात करें FTX के पक्ष की, तो FTX के पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने लेजरएक्स स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस एम्बेड, FTX जापान, FTX यूरोप के लिए ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। जी, और जैसे हमने सारी अपडेट्स के बारे में बात की है, तो लगातार 3.0 टीवी ने FTX कोलैप्स हुआ और उसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स रहे हमने सभी कुछ कवर किया है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इसके बाद लगता है कि और भी काफ़ी बातें जो है वो सामने आ सकती हैं। Exactly. जी, और एक पूरी एक वेब सीरीज जैसे एक के बाद एक एपिसोड्स, वैसे ये पूरा एक सिलसिला बन गया है। और ये सभी अपडेट्स हम 3.0 टीवी के सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। Moving on to the next update, Arbitrum-based lending protocol Lodestar Finance was exploited in a flash loan attack on December 10. According to Lodestar, the attacker manipulated the price of Plutus DAO's PLV GLP token before borrowing all platform liquidity using the inflated token. In a Twitter thread, Lodestar explained the attack flow. The attacker first manipulated the exchange rate of the PLV GLP contract to 1.83 GLP per PLV GLP and exploit that by itself would be unprofitable, said the company. Then the attacker supplied PLV GLP collateral to Lodestar and borrowed all available liquidity, cashing out part of the funds until the collateralization ratio mechanism prevented a full liquidation of the PLV GLP. Following the hack, several PLV GLP holders also took advantage of the opportunity and also cashed out at 1.83 GLP per PLV GLP. The hacker was able to burn a little over 3 million in GLP, making profit on the stolen funds on Lodestar minus the GLP they burnt, noted the DeFi platform. बहुत शातिर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो अटैकर था ये काफ़ी शातिर निकला। तो इसने बहुत ही टेढ़े तरीके से जो है वो ये पूरा जो स्कैम है ये इसको अंजाम दिया। तो पूरा $5.8 मिलियन जो है इसको प्रॉफिट हुआ है अटैकर को। और इसमें से जो लोडस्टार कंपनी है उनका कहना है कि इसमें से $2.4 मिलियन का जो प्रॉफिट उसने 5.8 मिलियन का उसका जो प्रॉफिट था उसमें से 2.4 मिलियन रिकवर कर लिया गया है और जितने भी डिपॉजिटर्स थे उन्हें ये पे बैक किया जाएगा। इसको हम फ्लैश लोन अटैक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार एक खबर भी कवर की थी, एवलांच फ्लैश लोन अटैक के जो अटैक हुआ था वो फ्लैश लोन इसके समान ही था, जिसमें $370,000 का नुकसान हुआ था। जी, तो बढ़ते अगली खबर की ओर। नाइनसेंट डेटा से पता चला है कि बाइनेंस, जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज का जायंट माना जाता है, उस पर पिछले सप्ताह के बड़े पैमाने पर विड्रॉल्स देखी गई है और मंगलवार को जून के बाद से एक दिन की विड्रॉल्स की हाईएस्ट अमाउंट मानी जा रही है। बाइनेंस की इंटरनेशनल आर्म ने $8.78 बिलियन से अधिक का एक्सचेंज छोड़ दिया और आने वाले फंडों में $5.1 बिलियन, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज को लगभग $3.66 बिलियन का नेट आउटफ्लो का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं FTX कोलैप्स का असर बाइनेंस पर होते हुए नजर आ रहा है, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जो दुनिया है
उसमें सबसे जायंट माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। जी। तो ये उस पर भी असर हो रहा है। अभी एफटीएक्स का इम्पैक्ट जो हुआ उसके अभी इसके बाद बाइनेंस की एक्टिविटी शायद इससे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आगे और जाकर। ऐसा कहा जा रहा है कि एफटीएक्स कंटेजन जो है वो स्प्रेड हो रहा है Exactly. क्योंकि सीजी ने इसे लेकर कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये कहा है कि खतरा तो है, लेकिन क्योंकि अभी कठिन समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए हम तैयार हैं। और तैयार हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी हमने बातचीत की थी इस पर कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स जो है वो बिटकॉइन के लिए जो सीजी हैं उन्होंने बाइनेंस ने निकाल दिया है, और काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स में वो ये बता भी रहे हैं कि कैसी एक्सचेंज एक आइडियल एक्सचेंज होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो जरूरी यही भी है, कहते हैं कि investors के लिए जरूरी भी ट्रांसपेरेंसी है Yes, हमारी एक्सचेंज exactly. में। जी, ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो आना जारी हैं। Well, that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसारगा फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV।